جو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے. تو اس قل کے ساتھ آپ اور میں اپنا اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی سلیوری اور اپنا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ اناؤنس کرتے ہیں. تو اسکالرس کی دوسری رائے یہ ہے کہ دعا سے پہلے قل اصل میں ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک ڈیکلیریشن ہے، اعلان ہے کہ میں صرف اپنے رب کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں. سیکنڈ پوائنٹ. اب ہے تھرڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ، قل دعا سے پہلے انسان کی نیت کو ریسیٹ کر دیتا ہے، تاکہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی غلط ایلیمنٹ آ گیا تھا تو ہم سب اپنی نیت کو، اخلاص کو ریفریش کر لیں، تاکہ بہت اچھی طرح سے ہم اللہ سے دعا مانگ سکیں. تو دس از دا تھرڈ پوائنٹ. قل دعا سے پہلے اصل میں کیا ہے؟ بندے کی نیت کی درستگی. نمبر فورتھ پوائنٹ، اسکالرز کہتے ہیں اگین جب ہم یہ قل پروناؤنس کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی پروٹیکشن سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اسی نے کہا ہے یہ دعا پڑھنے کے لیے. یہ پوائنٹ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 5، امام قرطبی لکھتے ہیں، یہ آپ کو جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ پوائنٹس آپ کو امام قرطبی، امام البغوی، امام ابن کثیر، امام ابن عطیہ، ان سب تفاسیر کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو ففتھ پوائنٹ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سے پہلے قل کہا ہے تو یہ مینشن کر دیا کہ یہ صرف دعا اس وقت نہ پڑھی جائے جس وقت آپ کو اور مجھے کوئی مشکل پیش آ جائے. یہ دعا آپ کی اور میری کانسٹنٹ روٹین کا حصہ ہونی چاہیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ دعا تب نہ پڑھی جائے جب حاجت ہو، یہ دعا صرف تب نہ پڑھی جائے جب مشکل آ جائے، بلکہ دیر از ڈیپتھ ان دس قل اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرس. وہ کہتے ہیں اس کو کانسٹنٹلی پڑھنا ہے بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیں اس قل سے سمجھانا چاہ رہے ہیں دیٹ پریونشن از بیٹر دین کیور. مشکل آنے سے پہلے ہی آپ اور میں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ رکھیں. یعنی مشکل کے آنے کا انتظار نہیں کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، حفاظت کی دعا دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو کانسٹنٹلی اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو. یہ اس کا ففتھ مفہوم ہے. سکستھ مفہوم جو اسکالرس اس قل کے اندر سورۃ الفلق کے اس پوائنٹ پر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اللہ کی حفاظت میں آنا ہے تو قل بالقول نہیں، صرف قل بالحال و کلام بھی اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں صرف قل بالقول نہیں کرنا، یعنی صرف زبان سے دعا نہیں پڑھنی، بلکہ ہم نے انشاءاللہ ان اللہ کی اطاعت کی باتوں کو اور وہ پریکاشنز جو ہمیں انشاءاللہ شر سے بچا سکتے ہیں، ہم نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. قل بالقول نہ ہو، قل بالحال اور قل بالکلام بھی ہو. دس از سکستھ پوائنٹ. قل بالقول صرف نہ ہو، قل بالحال اور قل بالکلام بھی ہو. صحیح؟ تو یہ 6 پوائنٹس ہیں جو اسکالرس جو ہیں کلاسیکل اسکالرس وہ اس قل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری پرائرٹی ہو، یہ پریسیڈنٹ ہو ہماری زندگیوں میں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی پوری اسٹرگل کریں گے. تو نمبر 1 کیا تھا؟ میں ریپیٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ. نمبر 1، یہ قل بندے میں محتاجی لے کر آتا ہے رب کے سامنے. نمبر 2، یہ اللہ کے سامنے بندگی کا ڈیکلیریشن ہے. نمبر 3، یہ ہماری نیت کو خالص کرتا ہے، ہماری نیت کو ریسیٹ کرتا ہے. نمبر 4، ہم اللہ کی حفاظت میں آنے سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. نمبر 5، ہم نے مشکل میں صرف اللہ کو نہیں پکارنا
بلکہ ایز اے روٹین ہم نے اللہ کو پکارنا ہے. اینڈ نمبر 6 ہم نے انشاءاللہ اس قل بالقول کو جو کہ دعا ہے اس کو ہم نے قل بالحال اور قل بالکلام میں بھی لے کر آنا ہے. اس طرح سے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 شروع ہوتی ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ میں حفاظت میں آتی ہوں. اعوذ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ فعل ہے. اعوذ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین واو ذال ہے. ٹھیک، کیا ہے اس کا میننگ؟ حفاظت میں آنا. اگر آپ استعاذہ کی ٹرم کو یاد رکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا. استعاذہ ہم نے یاد کیا تھا حفاظت میں آنا. استعاذہ کی ٹرم آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس اعوذ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس اعوذ کے میں آپ کو 5 میننگز لکھوا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں آہستہ آہستہ لکھواؤں گی تاکہ آپ لوگوں میں سے جو خواتین نوٹ کر رہی ہیں وہ نوٹ کر لیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 قل کے آپ کے سامنے میں نے میننگز رکھے اور اب اعوذ کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 5 میننگز رکھ رہی ہوں. اعوذ عین واو ذال سے بنا ہے اور اس کو آپ فعل مضارع کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ورب ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر اپلائی کرتا ہے. اعوذ کا پہلا مفہوم جو انشاءاللہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اعوذ کہتے ہیں کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا. کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا. دوسرا اس کا مفہوم ہوتا ہے اعوذ کا کسی ان سین خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آنا. کسی ان سین خطرے کو جو ہے فیل کرتے ہوئے کسی کی حفاظت میں آنا. دوسرا مفہوم. تیسرا مفہوم جو اعوذ کے اندر آتا ہے، تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ میں اتنی کمزور ہوں کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، تو میں آپ کے سامنے فل ایکٹ آف سبمیشن کے ساتھ موجود ہوں. اللہ میں اتنی کمزور ہوں کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، تو میں آپ کے سامنے فل سبمیشن کے ساتھ موجود ہوں. یہ اعوذ کے اندر تیسرا مفہوم جو ہے یہ آتا ہے. اچھا، چوتھا مفہوم جو اعوذ کے اندر آتا ہے وہ اسکالرز کہتے ہیں ایسی پروٹیکشن کہ جس کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ پروٹیکشن نہ اڈاپٹ کی تو صرف اور صرف میرا نقصان ہوگا، صرف اور صرف میں کسی نہ کسی اینگل سے شر کا شکار ہو جاؤں گی. تو یہ 4تھ مفہوم ہے جو اعوذ کے اندر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ پروٹیکشن اڈاپٹ نہیں کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے. صحیح ہے؟ اچھا، 5th مفہوم جو اسکالرز اعوذ کے اندر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے دشمن سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں. دیکھیں، دشمن سے حفاظت میں آنے کے لیے عربی زبان میں اجارہ کا لفظ بھی آتا ہے، ایک اور لفظ بھی آتا ہے، لیکن ایک بچنا ہوتا ہے ایسے دشمن سے جو آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور ایک بچنا ہوتا ہے ایسے دشمن سے جو آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو اعوذ 5th پوائنٹ ایسے دشمن سے بچنے کے لیے آتا ہے جو آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا.
इसलिए सूरतुल फलक हम पढ़ते हैं जादू से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, जेलसी से बचने के लिए, शैतान ईवल आई से बचने के लिए। ठीक है, मैं 5 पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, किसी पर भरोसा करते हुए उसकी हिफाजत में आना। नंबर 2, किसी अनसीन खतरे से किसी की हिफाजत में आना। नंबर 3, अपनी कमजोरी को समझते हुए किसी की हिफाजत में आना। अपनी कमजोरी को समझते हुए किसी की हिफाजत में आना। नंबर 4, इंसान का इस बिलीफ के साथ किसी की हिफाजत में आना कि अगर मैंने ये हिफाजत अडॉप्ट नहीं की तो इसमें सारा मेरा ही नुकसान है, सो आई हैव टू क्लिंग टू इट। सही। नंबर 5, अरबी ज़ुबान में आँखों से नज़र आने वाले दुश्मन के लिए इजारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आऊदु ऐसे दुश्मन से बचने के लिए आता है जिसको आप देख नहीं सकते, जो विजिबल नहीं होता। इसीलिए जादू, जेलसी, ईवल आई के लिए ये सूरत जो है ये अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दी है। तो ये इंट्रोडक्शन एक आपको आऊज़ु के लफ्ज़ का भी मिल गया और 5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुल कहिए आऊज़ु मैं हिफाजत में आता हूँ बी रब्बी, अगेन रब का लफ्ज़ आ गया, इसलिए कि रब का मुकाम इतना ही ज़रूरी है कि जो बंदे के सामने बार बार वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। और ये रब का नाम वो नाम है जो हमारी फितरत पहचानती है, जो हमारी रूह पहचानती है। हमारी रूह ने सबसे पहला तारुफ अल्लाह के नाम का नहीं, बल्कि हमारी रूह ने पहला तारुफ रब के नाम का किया है। सही। जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हमें एक ग्रैंड गैदरिंग में इकट्ठा किया था, आलम अरवाह कहते हैं या आलम मलाकूत कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको। सही। आलम अरवाह कहते हैं या आलम मलाकूत, दोनों तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। आप में से जिसको जो भी इस्तिलाह याद रखनी आसान है। अल्लाह ने हमारी रूहों को ये नहीं कहा था अलस्तु बिखालिकुम, ये भी नहीं कहा था अलस्तु बिराज़िकुम, ये भी नहीं कहा था अलस्तु बिरहमानिकुम। अल्लाह ने वाज़े तौर पर क्या कहा था? अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने रब की सिफत को इंट्रोड्यूस किया था हमारी रूह के सामने। वो जो हमारी हर स्टेज को फुली कंट्रोल के साथ और फुल कुदरत के साथ और फुल इरादे के साथ आगे से आगे क्लाइमेक्स पर बढ़ाता जाता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन है रब? वो जो हमारी हर स्टेज को फुल कुदरत के साथ, फुल इरादे के साथ और फुल कुव्वत के साथ आगे बढ़ाता जाता है। यानी मेरा हर दिन अल्लाह की कुदरत से वजूद में आता है। दैट्स द पॉइंट इन रब। और ये मुझे और आपको अपने आप को हर दिन याद कराना होता है। और यही तो आपका और मेरा इम्तिहान है। जिसने हर दिन रब को रब की स्टेशन के अंदर, रब के मुकाम के अंदर याद रखा, इंशाल्लाह वो रब की ओबीडियंस में आ जाएगा। लेकिन याद रखें, आपको ये हर दिन याद कराना कि अल्लाह मेरे हर दिन को वजूद में लाता है, ये कोई आपको याद नहीं करा सकता। नो वन विल फोर्स यू। या आपका अपना माइंडसेट ऐसा बनना चाहिए कि आप हर दिन अपने आप को याद कराएं अलस्तु बिरब्बिकुम के थ्रू कि अल्लाह मेरा हर दिन वजूद में लाता है। और इस दुआ में अल्लाह ने दोबारा इस अपने सिफत को इस्तेमाल किया है, कुल आऊज़ु बिरब्बी, ताकि बंदा रब का मुकाम पहचाने। तौहीद का कॉन्सेप्ट रुबूबियह का याद कर लीजिए।
तौहीद का अहम पिलर अगर हम रब को रोज़ रब के मुकाम पर रख लें, उसके अलावा कोई मुझे प्रोवाइड नहीं करता, उसके अलावा किसी ने मुझे थामा हुआ नहीं है, उसके अलावा कोई मेरे मामलात को संभालता नहीं है, उसके अलावा मुझे किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली डेडिकेट नहीं करना, उसी के लिए ज़िंदगी को सिर्फ डेडिकेट करना है और किसी के लिए नहीं करना। जब आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर देते हैं तो आप बंदों के हुकूक खुद ब खुद अदा करने लग जाते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला जो आप और मैं याद रखेंगे कि अल्लाह ने इस दुआ में हमें कॉन्स्टेंटली अपना मुकाम रब वाला याद कराया है, और यही रब का मुकाम अल्लाह ताला तमाम अंबिया के थ्रू तमाम कौमों को याद कराते थे। तमाम कौमों को याद क्यों कराते थे? तो रब का नाम वो नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कौमों को अपना तारुफ कराने के लिए इस्तेमाल किया है। नंबर 3, रब का नाम वही नाम है, ये मत भूलें हम, अल्लाह ने इसी नाम के थ्रू हमें अंबिया की दुआएं सिखाई हैं। आप देखें अंबिया की दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बना फगफिर लना, रब्बना वलमना अनफुसना। आपको जितनी भी कुरानी दुआएं मिलती हैं, आपको जितनी भी अंबिया की दुआएं मिलती हैं, आप नोट करें, सब रब्बना से शुरू होती हैं। रब्बना रब्बना रब्बना। तो इसको इंटरनलाइज करें, सोच कर इसको बोलें। ये रब को रब कहकर पुकारना अंबिया की सुन्नत है, अंबिया का ट्रेडिशन है, और जब हम रब को रब कहकर पुकारते हैं तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एतमाद और बढ़ जाता है, रब की स्वीटनेस हम महसूस कर सकते हैं। और अंबिया हमें यही सिखा कर गए हैं। जितना आप अल्लाह को अपने से बुलंद 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 महसूस करती रहेंगी, उतना इंशाअल्लाह आपके लिए आजिज़ी अडॉप्ट करना जो है वो आसान होता जाएगा। तो आया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहिए मैं हिफाजत में आता हूँ बिरब्बिल फलक। अल फलक अगला लफ्ज़ आ गया, मैं हिफाजत में आता हूँ सुबह के रब की। अल फलक, फा लाम कौफ, फा लाम कौफ इसका रूट वर्ड है, और मैं आपके सामने इसके 4 मफ़हूम रखूंगी, 4 मफ़हूम। नंबर 1, जैसे हम आम तौर पर उर्दू के ट्रांसलेशंस में इस आयत का तर्जुमा देखते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहिए कि मैं हिफाजत में आता हूँ सुबह के रब की। अच्छा, फलक सुबह को भी कहते हैं। फलक सुबह को क्यों कहते हैं? देखें, सुबह को कहना तो एक बिल्कुल सिंपल मफहूम हम लेते हैं ना, अरबी ज़ुबान में जब आप जाएंगी तो फलक सुबह को क्यों कहते हैं? इसलिए कि लिटरली सुबह जो है, सुबह ब्रेक करती हुई आती है, यानी डे ब्रेक्स आप कहते हैं ना फलक को। इट क्रैक्स थ्रू द डार्कनेस, इट क्रैक्स थ्रू द डार्कनेस। तो एक मीनिंग आता है सुबह। जिस रब की अब तक हम बात कर रहे थे, उसकी ताकत के इजहार के लिए जो लफ्ज़ लाया गया है वो है अल फलक। मेरा रब इतना ताकतवर है। अल्लाह ताला सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाना चाह रहे हैं अपनी रुबूबिया का। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो रात के अंधेरे से सुबह को फाड़ कर ले आता है। नंबर 1 मफहूम। नंबर 2, अल फलक या फलक बीज को भी कहते हैं, यानी सीड को भी कहते हैं। सीड क्या करता है? सीड जब अपने शेल को फाड़ कर कॉटिलेडन्स के साथ बाहर निकलता है,
تو सीडलिंग के लिए भी ये फलक का लफ्ज आता है। जब भी आप देखें फालिकुल हब कुरान में आता है, फालिकुल हब्बी वन नवा, वो जो बीज को टीयर करता है, फालिकुल इस्बाह। तो अल्लाह ताला के लिए कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट जो है सामने आपने रखना है कि अल्लाह जो है वो चीज़ों को इस तरह से सामने लेकर आता है, रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी लाता है, ज़मीन के अंधेरों के अंदर से बीज को, उसके कवरिंग को फाड़ के उसकी सीडलिंग को बाहर लेकर आता है। 2 मफहूम हो गए। तीसरा मफहूम फलका के अंदर जो आता है वो आपको डिक्शनरीज के अंदर मिलता है, ख़ासतौर पर ये बलागा के अंदर पढ़ाया जाता है। बलागा की किताबों में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि फलका, गौर से सुनिएगा, आई एम सो सॉरी अगर आवाज़ कट रही है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। फलका के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं खलका का मफहूम भी है। समझ आए? फलका के अंदर खलका का मफहूम भी आता है, यानी खलका तख्लीक का मफहूम भी आता है। क्या मतलब है इस बात का? वो कहते हैं कि हर तख्लीक इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग टीयरिंग ओपन, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हर तख्लीक, स्कॉलर्स कहते हैं, इज द रिजल्ट ऑफ टीयरिंग समथिंग। किसी चीज को टीयर करके कोई तख्लीक जो है वो सामने आती है। इसलिए अगर आप क्लासिकल स्टडीज करें तो स्कॉलर्स कहते हैं कि पहाड़ में से स्प्रिंग का निकल आना, इसको भी फलक कहते हैं। ये सब वो यूज हैं जो आपको क्लासिकल लैंग्वेज में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पहाड़ में से स्प्रिंग निकलना भी फलक है, बारिश का बादलों में से आना भी फलक है, पौधों का जमीन से निकलना भी फलक है, बच्चे का माँ के वूम से बाहर आना भी फलक है। मा मिनल जिबाल सैयबुन मिनल गमाम नबातुम मिनल अर्द व औलादु मिनल अरहाम। तो तख्लीक के अंदर, क्लासिकल अरबिक में आपको मिलेगा कि तख्लीक के अंदर फलका का कॉन्सेप्ट आता है। अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को इसी एक्सप्रेशन से वजूद दिया है। दैट इज़ द पॉइंट। तो हम सब उस रब की हिफाजत में आते हैं जो हर मखलूक को बनाने वाला है। अब आपके जहन में सिर्फ सुबह ना आए, बल्कि आपके जहन में हर मखलूक आ जाए, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। इसीलिए आपको क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में सूरतुल फलक की पहली आयत का तर्जुमा क्या मिलेगा? वो अक्सर इसका तर्जुमा ऐसे लिखते हैं, मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ही इज द मास्टर ऑफ द बर्थ, मास्टर ऑफ द डे ब्रेक, मास्टर ऑफ द रेन, मास्टर ऑफ द स्प्रिंग, मास्टर ऑफ द प्लांट। इस तरह से वो इसको डिफाइन करते हैं। तो ये है फलका का आपके सामने मफहूम। अब एक बहुत गहरी बात है, सूरतुल फलक के आप सारे मफहूम जो मैंने आपको बताए आप जहन में रखें। सुबह का फाड़ने वाला है, और वो जो है दाने को फाड़ता है, एंड द लास्ट वन आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह डिफाइंड इट के फलका के अंदर खलका का मफहूम है। स्कॉलर्स ने इतनी खूबसूरत बात 2 जुमलों में कही है कि आप इसके ऊपर पूरी किताब लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने वालों को इस आयत और इन आयात के ज़रिए बड़ी तसल्ली दी है। और वो तसल्ली क्या दी है कि देखो, हर सीन और अनसीन का खालिक सिर्फ अल्लाह है। हर खतरे से बचाने की ताकत सिर्फ उसको है। और ये जो आज हमारे साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ये जो हमारे सोशल फियर्स हैं, उसमें इस नेचुरल फिनोमेना को, तख्लीक के नेचुरल फिनोमेना को एक बहुत डीप कनेक्शन मिलता है।
अल्लाह जो अंधेरों को क्रैक करके सुबह ला सकता है, अल्लाह जो पहाड़ों को फाड़ कर चश्मे बहा सकता है, वो अल्लाह मेरी जिंदगी की अंधेरी परेशानियों के अंदर से खैर का नूर नहीं फूट सकता, खैर नहीं निकाल सकता? जैसे रात में शर होता है सिर्फ अल्लाह ही बचाता है, ऐसे ही जिंदगी में जितनी मुश्किलात हैं उनको टीयर करके, उनको फाड़ के खुशियां लाने की कैपेसिटी रब के पास है। रब ये कर सकता है। रब हमारी जिंदगी में से जुल्मात को दूर कर सकता है, और हमारा ईमान होना चाहिए कि रब को पुकारने से अंधेरे दूर होते हैं। ये एक ही आयत है, एक ही आयत जो बहुत गहराई के साथ हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरी जिंदगी की परेशानियों को टीयर करते हुए खैर आ सकती है जब मैं अपने रब से इस खैर को तलब करूंगी। बस मुझे तलब करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से ये छोटी छोटी काविशें कबूल फरमाए और हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकिल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।